Hello, dear students. Welcome again to the Pharmacy Infoline. Here in the series, we are on part 4 now, which is for Diploma in Pharmacy Exit Examination. In part 4, we will be talking about the examination fees, the payment gateway, and how you are supposed to confirm that the payment is successful. Then we are going to talk about the theoretical scheme of examination and the time slots, allotted time slots. About that we will be looking into that in next part of the series. Okay, so just to take a brief review for the part 3, we have seen in part 3 that candidates को क्या क्या care लेना है, what all instructions are supposed to be taken into consideration by the candidates. All those details we have seen in part 3. Okay, so now in part 4 we will be discussing about the examination fees and the theoretical scheme of the examination. Okay, so coming towards the first point, that is examination fees. As you can see here, this is the screenshot from the information bulletin which is being released by NBMS, that you have to make a payment of rupees 5,900, which is the total payable amount. As you can see here on the screen, actual examination fees is rupees 5,000 plus added GST of 18%, that is rupees 900. So total payable amount becomes 5,900 rupees. But this 5,900 excludes the charges which as may be applicable by various payment gateways. So वो amount vary होगा and that will be excluded from this 5,900, whatever may be the charges applied by the respective banks on the transactions. Okay, so through payment gateway provided using a credit card or a debit card issued by banks of India, मतलब इंडिया के कोई भी बैंक से जो भी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड इशू हुआ है, थ्रू देम ओनली the pay through the payment gateway provided the payment will be done, or other modes as may be available. अगर कोई दूसरे options available है तो fees will not on the web page, fees will not be accepted in any form in the cash. Kindly ensure that the payment made for examination fees is successful. मतलब फीस भरने के बाद आपको ये क्रॉस चेक करना है कि मेरा पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है. How you will come to know that? You will be on your screen, the status will be reflected as capital S for the successful payment. Okay, for the successful payment of the fees towards the examination. If successful S status doesn't appear, then don't be in a hurry immediately for the second transaction. Immediately आपको transaction पे transaction नहीं करने हैं. अगर आपको स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट बैंक के साथ स्टक हुआ है. ओके, पेमेंट माइट बी स्टक विथ योर बैंक एंड माइट बी क्लियर्ड एट द लेटर डेट, मतलब या फिर ट्रांजैक्शन प्रोसीडिंग को टाइम लग रहा है. ओके, so you are supposed to wait for few hours and then again you are supposed to retry, because sometimes even your you might receive an SMS that so and so amount has been deducted from your account, but sometimes the successful status might not get reflected. It will show pending. So don't be in a haste, don't be in a hurry to go for the next transaction. Wait for some time because it might take some time. If not, even if by mistakenly or by some technical issues आपका second transaction भी हो जाता है, तो NBMS will reimburse all. NBMS will refund all the fees which is being issued extra. Okay, अगर आपके तरफ से दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, मल्टीपल बार पेमेंट हो चुका है, तो NBMS ये एक्सेस फीस जो उसकी तरफ रिसीव हुआ है
वो आपको रिटर्न कर देगा आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो, और जितना प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फीस है उतना ही खुद के पास रखेगा। एग्जामिनेशन फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर एब्सेंट और हैव बीन डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, मतलब अगर किसी सो एंड सो रीजंस XYZ रीजंस के वजह से कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है, कोई फ्रॉड हुआ है, ओके, कैनवासिंग हो गया है, या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई इशू के वजह से एलिजिबिलिटी आपका आप इनएलिजिबल हो चुके हो, तो वो केसेस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका फीस रिफंड नहीं होगा। या फिर अगर आपका आप एब्सेंट रहते हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, देन योर फीस शैल बी फोरफीटेड, आपका फीस जब्त किया जाएगा, वो रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेरीज है दैट कैन बी सबमिटेड थ्रू CWP ओनली, थ्रू वेब प्रोसेसिंग ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म्स वंस सबमिटेड कैन नॉट बी विथड्रॉन। एक बार आपने एप्लीकेशन भर दिया या सबमिटेड, then it's over, you cannot withdraw that application। और ये से फॉर एग्जाम्पल किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया बट उसको पॉसिबल नहीं है एग्जाम पे जाना, ये उसको पहले ही पता चलता है, इन दैट केस ऑल्सो कोई भी फीस रिफंड नहीं होगा। या फिर अगर आप पहले भी कम्युनिकेट करते हो NBMS को थ्रू मेल कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, वट एवर इट मे बी, हेल्थ इशू, so and so reason I will not be able to attend the exam, then too your fees will not be even carried forward or it will not be refunded under any circumstances. So please 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 take this thing into consideration. Any claim for refund, adjustment or carry forward of application fees will not be entertained. ऐसा कोई भी एप्लीकेशन अगर आप NBMS को करते हो तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। स्कीम ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी एग्जामिनेशन, तो थ्योरेटिकल स्कीम में आपको बताने वाली थी ये वीडियो में। इसमें जैसे कि आपको अब तक पता चल चुका होगा कि ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा फार्मेसी के जो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशंस है, उन बच्चों को उसी सिलेबस के बेसिस पे MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है। जो भी ER 1991 के बच्चे हैं जो 24-25 में पास हुए हैं या अभी तक पास नहीं हुए हैं, उनको ये एग्ज़ाम एप्लीकेबल नहीं है। या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं स्टेट काउंसिल को, उनके रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल्स को, उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है। ओनली दोज स्टूडेंट who have passed in summer 24 examination and enrolled in 2022, those students only will be eligible for the examination, या फिर applicable उनको ही ये एग्जाम होगा। Here आपको बेसिकली 3 पेपर होंगे, 3 papers will be there on 3 consecutive days, okay? तो 3rd, 4th एंड 5th अक्टूबर पे एग्जाम होने वाला है आपका और 3 पेपर होने वाला है। इसका मतलब एक पेपर 3rd अक्टूबर को होगा, दूसरा पेपर 4th अक्टूबर को होगा एंड तीसरा पेपर 5th अक्टूबर को होगा। ओके, सो एक पेपर में क्या होगा, नाउ फॉरगेट अबाउट 3 पेपर्स। उन 3 पेपर्स में से एक पेपर में क्या होगा, तो एक पेपर में ईच पेपर शैल कंप्राइज ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब क्या हुआ, पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस एंड पेपर 3 में 150 क्वेश्चंस। ऐसे आपको 3 दिन पे एग्जाम देना है। ओके, अभी 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए टाइम कितना अलॉटेड होगा, 180 मिनट्स अलॉटेड होंगे। मतलब 3 घंटे आपको मिलेंगे। ओके, तो ये कैसे होगा, एक ही साथ आपको 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक ही साथ 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, क्या कैसे होगा, ये सब स्कीम विथ टाइम स्टैम्प्स आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके,
सो यहाँ पे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एक पेपर में होंगे, 180 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब 3 घंटे आपको होंगे. नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर. Okay, so this is a relaxation for the students that there is no negative marking. Okay, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव दिनों पे ये एग्जाम चलेगा. इसके लिए ब्लूप्रिंट भी आ चुका है, जो ब्लूप्रिंट हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं. बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. ओके, all candidates shall be divided into 2 groups and shall be required to take these papers in either morning shift or in the afternoon shift each day. मतलब 3 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 4 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर होंगे और 5 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर होंगे. उनका टाइमिंग एंड ऑल क्या होगा, ये टाइम स्टैम्प्स वी आर गोइंग टू लुक इनटू द नेक्स्ट वीडियो. एक क्वेश्चन पेपर जो भी होगा ये मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन में डिवाइडेड होगा. फॉर एग्जाम्पल 150 क्वेश्चंस है तो उसमें 3 टाइम बाउंड सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ओके, सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे. सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे. सेक्शन सी में 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे. ऐसे 150 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स आपके होंगे. ओके, सो ईच डे one paper comprise of 3 sections of 50 questions each. Okay, and one section को आपको 1-1 घंटा मिलेगा. The candidates would be restricted to proceed to the next section until the completion of the allotted time of the previous section. तो आपके एग्जाम के जैसा नहीं होने वाला है. 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे ही चलेगा. आधे घंटे में पेपर आप हैंड ओवर करके एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकल सकते. एक टाइम स्लॉट खत्म होगा 60 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा. ए सेक्शन अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो वो 1 घंटे तक चलेगा. 1 घंटे तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके आंसर्स दे सकते हो, रिव्यू कर सकते हो. फिर आपको सेक्शन बी पे जाना है. एक बार आपका एक सेक्शन खत्म हो जाता है तो आप सेक्शन बी पे जाते हो. सेक्शन बी में आपको बीच में याद आता है कि सेक्शन ए में मेरा ये क्वेश्चन मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, ये गलत लिखा था, तो आपको उसका चांस नहीं दिया जाएगा. सेक्शन ए रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पहले 1 घंटे में ही करनी है. सेक्शन बी से रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो आपको दूसरे नेक्स्ट आवर में ही अलाउड है एंड सो ऑन. ओके, सो सेक्शन वाइज इसके लिए आप एक बार जिन बच्चों ने जीपैट दिया है, आपके सीनियर्स होंगे, बीफार्म पास आउट बच्चे होंगे, ओके, आपके कॉलेज में होंगे या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में होंगे, उनसे एक बार बात कर लेना कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है. जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही ये टेस्ट होता है, बट देन टू your friends can guide you in a more better way. Candidates would not be allowed to review the questions, modify the responses of sections after completion of the allotted time of that section. मतलब जैसे कि मैंने बोला, एक सेक्शन का हिसाब एक सेक्शन में खत्म होगा. एक सेक्शन जब खत्म होगा तो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट सेक्शन के ही क्वेश्चंस पे बात चलेगा. थर्ड सेक्शन में थर्ड सेक्शन के ही क्वेश्चंस पे बात चलेगा. आपको किसी भी सेक्शन में इंटरफेरेंस करने का चांस नहीं दिया जाएगा. क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम ऑफ द प्रीवियस सेक्शन. मतलब नेक्स्ट सेक्शन आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जब आपके पहले 60 मिनट्स पूरे हो जाएंगे. फिर थर्ड सेक्शन आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जब आपके 120 मिनट्स पूरे हो जाएंगे. मतलब दूसरे सेक्शन का 60 मिनट्स, 1 घंटा पूरा हो जाएगा, तब आपका नेक्स्ट सेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. और अगर आपको अभी ये क्वेरी रेज हो रहा होगा, बीच में ही मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मेरा सिस्टम बंद पड़ गया, तो लाइट चला गया, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों के लिए कौन से केसेस है, वो केसेस में कैसे कैसे टाइम स्टैम्प कंसिडर होने वाला है, ये सब भी हम आगे के वीडियोस में बात करने वाले हैं.
So with this, I thank you all. Stay tuned for the update, more updates on the PEE examination